We are continuing this video from Sushant Singh Rajput's and Riya Chakravarti's reading and pulling extra cards here. So let's see what additional guidance is coming for their relationship. हीलिंग फादर इशू सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती का हम लोग वी आर pulling extra cards for their relationship to get a little insight into their relationship, and we have got the father healing card, okay, which means that we have already seen that his family was not happy with this relationship. We have got an ancestor card in reverse, which means that his family was never happy with his card, with his relationship, and father healing. So quite possibly his father was not really happy with this relationship. Okay, so let's look more into this card and see if we get more insight into Sushant Singh Rajput and Riya Chakravarti's relationship. What is that we need to know? Dear angels, make a decision. So if you see, he was feeling very stuck in this relationship. He was not able to decide. Guidance is to listen to intuition. Okay, so because his family was not very happy with this relationship and he was doing everything to make this relationship work, which was also quite possibly because of the pressure of his failed relationship coming from the past, so he was not really able to decide. He had already invested a lot of time, money, energy on her, and here was his father not very happy with this relationship, and he was in a doldrums. He was not able to decide whether, and he was also being hunted, right? So we don't know what was, he was not able to decide things, and he did try to hold on to this relationship, but finally लगता है कि उन्होंने अपना intuition को सुना होगा, or he would have thought that things are, there is something wrong, something missing with this relationship. Undercurrent में कुछ है जो कि उनको क्लियर नहीं था, and that is why शायद guidance था to listen to his intuition, which he was clearly ignoring. Okay, he was not listening to his intuitions or signs or synchronities, या फिर कुछ जो गड़बड़ लग रहा था उस पर वो ध्यान नहीं दे रहे थे, और यहाँ पे ही शायद मिस हुआ है उनसे. Guidance coming for Sushant. फ्रेंडशिप इज़ रिवर्स ऑर्डर में है, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स लोगों ने इनको सपोर्ट नहीं किया है. ओके, एंड आई फाइंड दिस वेरी सरप्राइजिंग कि आपके इतने फ्रेंड्स होते हैं, आप पार्टी करते हो और दूसरे दिन आप इस दुनिया में नहीं रहते हो. तो किस तरह का रिलेशनशिप है, किस तरह के फ्रेंड्स हैं आपके पास, आपके आसपास. सो दैट इज़ रियली सैड. What we need to know about Sushant and Riya Chakravarti's relationship, dear angels. The thinking woman. The door to romance is in opposite direction. तो यहाँ पे एक है कि he was in a relationship with a woman. This woman is she is a woman who is not thinking with her hearts. Okay, she is a thinking woman. So Riya एक ऐसी lady है जो अपने दिमाग से सोचती है. Okay, she is more into her brains, very calculative, बहुत सोच समझ के कुछ भी करना और very carefully करना. एंड अगर आप देखोगे तो दोनों कार्ड साथ में आया है, विच मीन्स कि डोर्स ऑफ रोमांस अपोजिट है और थिंकिंग वुमन स्ट्रेट है, विच मीन्स कि शी वॉज वेरी गुड विथ प्लानिंग, थिंकिंग, वेरी वाइज, एंड शायद इसीलिए उसने all these things that she did with his company and getting the company open in his name and all that, उसने बहुत ही चालाकी से कर लिया, because she was very good with her brains. Okay, very good at thinking, very smart,
and probably that is how she kind of convinced Sushant to open companies and make her brother party or director and do it, all that. But whatever it is, we definitely get an idea ki she is very smart woman, she is very good with thinking, very smart, very calculative, very analytic. उसको पता था कि वो क्या कर रही है. She was very smart lady, okay? And here is a romance opposite, which means that love was completely missing in this relationship. There was this relationship was more about money and other stuffs than love. So because the door of romance is completely closed here. So I don't know why Sushant was in this relationship, but this is really sad. It was more of a power game. Sacral chakra, solar plexus आया है. This is the third chakra, which is more about a power game. If you know, the solar plexus is the chakra about, you know, a masculine energy. It is about fighting spirit. It is about willpower. It is about determination. It is about a Mars energy, which is completely your third chakra, which you need in a, you know, when you are fighting things, when we are, it's a very war energy which you need to fulfill your goal, desires. तो इस तरह का एनर्जी इस रिलेशनशिप में है, एंड दैट टू वेरी एग्रेसिव बिकॉज ये उल्टा है. तो इस तरह का एक फाइटिंग एनर्जी है, कॉम्पिटिटिव एनर्जी आप उसको बोल सकते हो, वो एनर्जी है. ओके, नाउ लेट्स पुल सम कार्ड्स फ्रॉम आवर एनिमल ओरेकल डेक एंड सी what guidance we are getting for Sushant and Riya's relationship. Okay. Spirit has your back. Give with gratitude and grace. Reclaim your power. गिव विद ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस तो डेफिनेटली हम इस रिलेशनशिप में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने आपको बताया है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए सब चीज़ कर रहे थे. Whatever was possible, he was doing everything to make this relationship work. He was giving and giving and giving with gratitude, okay? कहीं भी कुछ घमंड नहीं है. He was very giving in this relationship. And spirit has your back आया है. तो मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है ना कि इस रिलेशनशिप में उनको उनके स्पिरिट गाइड्स ने बहुत बचाया है. ओके, शायद ये बहुत पहले ही कुछ ऐसा हो सकता था, बट इनके स्पिरिट गाइड्स ने इनको बहुत बार एक गाइड किया है कि पे अटेंशन करो, कुछ गड़बड़ है, कुछ मिसिंग है, दिस इज़ द थिंग दैट इज़ कमिंग स्ट्रांगली. उनको उनके गाइड्स ने, बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, ही वॉज अ वेरी काइंड, ही वॉज वेरी गिविंग, वेरी लविंग. तो ऐसे अच्छे इंसान के लिए तो डेफिनेट स्पिरिट गाइड्स तो सब लोगों को गाइड करते हैं, तो इनको भी स्पिरिट गाइड्स इनके गाइड कर रहे थे. इनको छोटा साइन, सिंक्रोनिसिटीज़, कुछ गड़बड़ है ऐसा मैसेजेस मिल रहा था इनको, बट ये इतने इन्वॉल्व थे अपने काम में बोलिए या फिर अपने एक रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए, बिकॉज इनका ऑलरेडी रिलेशनशिप वर्क नहीं हुआ है, तो एक प्रेशर हो सकता है कि नहीं इसको करना है, नहीं तो लोग मुझे गलत समझ सकते हैं कि मेरा ही रिलेशनशिप क्यों नहीं वर्क करता है, या कुछ भी इनके दिमाग में बहुत चीज़ चल रहा था. ओके, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये एक मून कार्ड जो आया है, ये इट इज़ नथिंग बट योर शैडो साइड. ये एक शैडो साइड में चले गए थे इस रिलेशनशिप के कारण, एंड इट वाज लाइक ही रियली वांटेड इट टू वर्क. और शैडो साइड इज़ नथिंग बट योर डिप्रेस्ड साइड. ओके, अ लॉट ऑफ मेंटल एंग्जाइटी, जहाँ पे आपको लगता है कि कुछ वर्कआउट नहीं होगा आपके लाइफ में, उस तरह का एनर्जी वो जा रहे थे. और ये बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज इनको मुझे ऐसा फील होता है ना कि उनका सब पावर लिया जा रहा था. ओके, उनको बिल्कुल एक तरह से घेर के बोलते हैं कि उनका भी अपना भी एक होता है ना कि अगर मेरा भी रिलेशनशिप वर्क नहीं किया तो मेरे अंदर भी एक है कि मुझे प्रूव करना है कि नो
ऐसा नहीं है। और बाकी सारे लोग इसको बिल्कुल इनके सिचुएशन को या एक्सपीरियंस बोलिए या जो भी बोलिए, तो एक रिक्लेम योर पावर आ रहा था। ओके, कि शायद उनको सब दबा रहे थे या फिर उनका यूज़ कर रहे थे या फिर उनके कुछ भी सिचुएशन का यूज़ कर रहे थे, तो इस तरह का कुछ एनर्जी आया है। ओके, बट डेफिनेटली उनको उनके गाइड्स ने बहुत बार गाइड करने का कोशिश किया है, शायद उनको प्रोटेक्ट भी किया है, शायद उनको बताया कि रिलेशनशिप में जा रहे हो, आप वार्न हो जाओ, हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली शायद लॉकडाउन के कारण और जो भी हुआ, वी we somehow lost a very good human being, so which is really our loss, completely our loss. एक सरेंडर कार्ड उठाते हैं और देखते हैं कि वी गेट व्हाट मैसेजेस फ्रॉम इट। ओके, तो बट इस रिलेशनशिप में वो बहुत सोच रहे थे। ओके, ही वाज रियली वरीड अबाउट दिस। One more card we are looking for Sushant and Riya to see what kind of relationship they were into. Okay, surrender, defensiveness. Absolutely. अगर आप ये देखो तो इसमें क्या लिखा है, defensiveness is a sign of weakness. To communicate in a manner more empowered way, stay centered and hear someone out, then offer a clear of non-defensive response. तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी एक कार्ड आया है जहाँ पे reclaim your power है। ओके, कोई उनका पावर लेना चाह रहा था, कोई उनको दबा रहा था, कोई उनको एक एक ब्लैकमेल कर रहा था। तो और ये शायद कुछ बोल नहीं पा रहे थे। ओके, मुझे एक ऐसा एनर्जी आ रहा है कि एक पास्ट मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए हम कभी कभी दूसरे लोगों का गलत एक लिवरेज दे देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे देते हैं। तो एक यहाँ पे एक इस तरह का यूज़ किया जा रहा है, किसी को दबाया जा रहा है और एक उसको वीक बनाया जा रहा है। तो इस तरह का एक एनर्जी आया है। सरेंडर, लो सेल्फ इस्टीम। तो लो सेल्फ इस्टीम क्यों आ रहा है? इट्स लाइक मोर, अगर आप देखो तो ये सारा एक दूसरे से टैंडम कर रहा है। इनको हंट किया जा रहा है और इनका पावर लिया जा रहा है। एक लव बहुत ही ज़्यादा मिसिंग है रिलेशनशिप में। एक थिंकिंग वुमन है जो बिल्कुल अपने दिमाग से काम करती है। एट द सेम टाइम लव भी नहीं है, लव भी बिल्कुल उल्टा चल रहा है। और ये एक स्लो सेल्फ इस्टीम से भी जा रहे हैं। ओके, मे बी मूवीज़ हिट नहीं हो रही होंगी इनकी, तो एक उस तरह का फीलिंग होता है कि जो भी है यहाँ पे है। और एक डिफेंसिवनेस है, तो उनको बिल्कुल एक तरह से घेर के एक प्रूव किया जा रहा था कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर पर्सनली और प्रोफेशनली नॉट गुड इनफ। तो एक उस तरह का सेल्फ इस्टीम, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रांग वुमन है यहाँ पे, अ वुमन हु इज नॉट थिंकिंग बाय हार्ट, she is thinking with her mind, and she has got a sacral chakra. Now solar plexus. Now a thinking woman with a aggressive wand energy, Mars energy, यानी कि उसके पास एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी है, एक एजेंडा भी है यहाँ पे अगर आप देख लो, और एक दिमाग भी है। तो उस तरह से आप बिल्कुल एक आदमी को टारगेट कर रहे हो, ऐसा कुछ फीलिंग्स आ रहा है। उनके फादर को बिल्कुल भी ये रिलेशनशिप पसंद नहीं था। तो yes, this is what we have for Sushant and Riya. Do let me know what you feel about the reading, and I'll see you in the next video. Thank you so much for watching.